So, when we discuss about the waves, how do we define waves? A phenomena which transfers energy without transporting any medium. This is what I was talking to you about कि water waves and when we throw a pebble into a water, we see this spherical wavefront. This is known as a wavefront and wavefront हमारे पास क्या होता है? It is a imaginary surface on which each particle is moving with the same phase of vibration. और नॉर्मली हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स होते हैं, हमारे पास प्लेन वेव फ्रंट्स भी बन सकते हैं एंड दे ऑलवेज गो अवे फ्रॉम द सोर्स. इस तरह की वेव्स को प्रोग्रेसिव वेव्स का नाम दिया जाता है. ओके, आई एम गोइंग टू ऐड फ्यू न्यू पॉइंट्स व्हाइल आई सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं. इसमें हमारे पास ये आता है, सच अ वेव्स आर नोन एज प्रोग्रेसिव वेव्स. What are those waves which moves away from the source? We also discuss about periodic waves. Periodic waves क्या थी? Which repeat itself after regular interval of time. Okay? So periodic waves and progressive waves. But what we need to keep in our mind is that particle is not going to move from its position. Particle is going to oscillate at its own position. Oscillations, vibratory motions, and everything we have already done in the class 9. Do I need to go back to that position? No. अच्छा जी. नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? साउंड वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड वाटर वेव्स. वाटर वेव्स हमारे पास नॉर्मली इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसवर्स वेव. वी हैव discussed about this before. Okay, since it's a revision of this chapter, so I don't have to go into detail of everything. So sound wave is an example of longitudinal and at the same time mechanical wave. Okay, whereas water wave is again an example of mechanical wave and its transverse in nature. Electromagnetic waves हमारे पास कौन सी होती हैं? They are medium, independent, and also remember all the electromagnetic waves which we are going to study in the later stage as well. They are all transverse in nature and they all travel with the speed of light, which is 3 into 10 raised to power 8 meters per second. It's a fixed value. Let's say it's not mentioned. The motion in a rope, we discussed this example in context to transverse wave. This is the amplitude as shown, and from one point to another is known as wavelength. We can start from here and end here. It could also be wavelength. If I start here and ends here, this is also one wavelength. One crust and trough combines also gives one wavelength. Crust to crust is one wavelength. Trough to trough is one wavelength. If we start at any point in a wave and end exactly at the same point in the next wave, that is going to be considered as a wavelength and it has a unit of meters. It's basically a distance between the 2 points in terms of waves. Wave propagate in terms of particle oscillate hota hai and they transfer their energy. We have discussed two types of waves, electromagnetic wave and transverse mechanical wave. They might not have in particular medium experience periodic motion or vibratory motion. These oscillations can be longitudinal, which is parallel, and transverse move perpendicular is in the electromagnetic waves. वो इन्होंने बताया हुआ कि transverse wave, all electromagnetic waves is transverse in nature, and while they oscillate at their fixed position, they do not leave their positions and they only exchange their energy. उन्होंने वही point यहाँ पे discuss किया हुआ है. No net movement.
नो नेट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि पार्टिकल कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो जब डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में हम उसको बात करेंगे, तो अगर इफ इट स्टार्ट फ्रॉम द सेम फ्रॉम अ पॉइंट एंड एग्जैक्टली एट द सेम पॉइंट, तो इट इज कंसिडर्ड एज अ जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो ओवरऑल जो डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास, इट्स कंसिडर्ड एज जीरो। दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर द वेव passes। ऑब्वियसली जब एक पार्टिकल ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है, वुड इट स्टे एट दिस पोजीशन या इट विल कम बैक टू इट्स ओन पोजीशन? Will I'm come back. expecting answers from you guys. I don't have to take names, just answer on you. So in It that will come context, back. since displacement is a vector quantity, so they are considering it as a no net movement because they're coming back to their original position. Characteristics of waves में हम लोगों ने discuss कर ली हैं wavelengths multiple time. The upper part is known as crust. This lower part is known as trough. This is another way of how we can show longitudinal wave as well. अगर हमने in terms of wave longitudinal wave को show करना है, तो this is known as valley and this is known as mountain. Mountain is obviously be showing compression and जो valley होती है that's rarefaction. I think so I forgot to tell you this part, compression and rarefaction वाला. So let's discuss it now. जो transverse wave होता है ना, transverse wave जो है, they travel in the form of crust and trough. ठीक है, crust and trough we have just reviewed. और जो longitudinal wave होता है हमारे पास, for longitudinal wave we have compression and rarefaction. Compression and rarefaction is basically, if you consider them in terms of, हमने पढ़ा ना wave fronts spherical भी होते हैं, wave fronts plane भी होते हैं. So the part of wave where wave fronts are close to each other are known as compression, और जहाँ पे further apart होते हैं वो rarefaction. So this is compression, rarefaction, compression. Again the same thing. If I'm starting from the first line, मैं जो next compression की first line पे जाके stop करना है, that's going to be one wavelength. अगर मैं लास्ट लाइन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो लास्ट लाइन पे जाके एंड करूंगा, दिस इज वन वेवफ्रंट. नॉर्मली क्वेश्चन आता है, एक ऐसे एरो हेड बना देते हैं और एक सिंपल ऐसे एरो हेड बना देते हैं. ठीक है, तो दिस इज वेवलेंथ और दिस एरो हेड शोज द वेव फ्रंट. तो इसमें आपने वो उसमें कंफ्यूज नहीं होना. हाँ, अगर कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शंस बनाए हुए तो नेक्स्ट फर्स्ट कंप्रेशन टू नेक्स्ट कंप्रेशन देना है. लेकिन अगर ओनली सिंपल बार्स उन्होंने ड्रॉ करके दी हुई है तो वन बार टू नेक्स्ट बार इज वन वेवलेंथ. डू वी अंडरस्टैंड? I didn't understand rarefaction. जैसे हम लोगों ने, if we attach a spring to one end na, and we move the spring back and forth, we would observe certain parts of the spring compressed and certain further apart from each other. ऐसे ही है. The section of the spring where the spring is compressed is known as compression, and the part of the spring where it's further apart, it's known as rarefaction. तो एक वेव में there might be compression. हाँ, ये देखो ऐसा. अगर हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं बैक एंड फोर्थ, तो जो पार्ट कंप्रेस्ड होते हैं इट्स नोन एज compression, and the parts which are further away they are known as refraction. So compressions में डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी या लो होगी? डेंसिटी ऑफ पार्टिकल. Hi. ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर. एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी. whereas rarefactions में लो डेंसिटी एंड एनर्जी को शो कर रहा होता है. Anyhow, we are coming to this position, तो ये दोबारा एक दफा बात हो जाएगी. Let's go back to where we were.
मुझे नहीं पता था आगे जाकर उन्होंने डिस्कस किया हुआ। वेव फ्रंट्स हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। यहाँ पे उन्होंने उसकी डेफिनेशन दी हुई है। The locus of all points that traveled some distance during a fixed interval is called a wavefront. मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था? Considered a wave on which each particle is moving with the it's moving exactly the same way and coming down the same way. Such an imaginary surface, such points combined together to a line is known as wavefront. Crust and trough we have discussed before. Displacement हमने पढ़ ली हुई है. Particle की movement at any point of time is known as displacement. Amplitudes को discuss कर लिया है. Longer wavelength, shorter wavelength. Longer wavelength की frequency क्या होती है? लो होती है। शॉर्टर वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हाई होती है हमारे पास। ठीक है, ये हाई एम्पलीट्यूड है, ये लो एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड से फ्रीक्वेंसी का कोई लेना देना नहीं होता, वेवलेंथ के साथ उसका रिलेशनशिप होता है इनवर्स का। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हमारे पास। ठीक हो गया? टाइम पीरियड हमारे पास टाइम टेकन, फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, तो ये वेव जाके कहाँ कंप्लीट हो रही है? यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रही है। तो टाइम टेकन फॉर दिस वेव टू कंप्लीट इट्स वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो इस पॉइंट पे जाके जो टाइम होगा, इट वुड रिमेन सेम इफ द वेव इज पीरियोडिक ना। इनको पीरियोडिक वेव्स कहते हैं। पीरियोडिक वेव्स का एक मीनिंग ये भी होता है कि अगर उनके अंदर किसी किस्म का कोई चेंज ना आ रहा हो, ना एम्पलीट्यूड में चेंज आ रहा हो, ना वेवलेंथ में चेंज आ रहा हो, if it looks alike throughout its motion, such waves are known as periodic waves। तो इस तरह की वेव्स को भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी हमने क्या बोला था? 1 सेकेंड में कितनी वेव्स ट्रेवल करी हैं? इट्स नोन एज फ्रीक्वेंसी। इसका यूनिट जो है वो होता है फ्रीक्वेंसी। एंड टाइम पीरियड का रिलेशनशिप ये भी होता है। वेव्स एंड देयर टाइप्स, 2 टाइप्स की होती हैं हमारे पास। कौन कौन सी? Mechanical and electromagnetic. यस, मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती हैं? जो मीडियम डिपेंडेंट होती हैं। मैकेनिकल वेव्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू longitudinal and transverse wave. Electromagnetic waves are the ones which does not require any medium. एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है ऑर्थोगोनल। दोनों का मतलब 90 डिग्रीज ही होता है, बट ये जरा ना 3 डायमेंशनल वे में होता है। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव्स जो है ना, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट एवरी पॉइंट। सच वेव्स आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स भी आ रही होती हैं, मैग्नेटिक वेव्स भी आ रही होती हैं। दे आर एट 90 डिग्रीज टू ईच अदर इन स्पेस। स्पेस में वो इस तरीके से ट्रेवल करती हैं 3 डायमेंशनली। तो दे आर नोन एज electromagnetic waves. Few of the waves are mentioned here. So you can light waves, X-rays, ultraviolet waves, infrared, इसमें माइक्रोवेव्स भी आ जाते हैं, इसमें रेडियो वेव्स भी आ जाते हैं, इसमें गामा रेज भी आ जाती हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मीडियम इंडिपेंडेंट, बट इफ वी स्टडी देयर प्रॉपर्टी दे प्रीटी मच ट्रेवल लाइक ट्रांसवर्स वेव, यानी क्रस्ट एंड ट्रफ की फॉर्म में वो ट्रेवल करता है। फिर ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम आ गई हमारे पास, और स्ट्रिंग की एग्जांपल आ जाती है, इसमें वाटर वेव्स की एग्जांपल आ जाती है, सिस्टमिक वेव्स की एग्जांपल हमने डिस्कस की हुई है। कभी मिक्स नहीं करना। ट्रांसवर्स वेव परपेंडिकुलर मोशन होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखो अगेन उसने उसको डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे आर वाटर वेव्स उसमें आती हैं। सिस्टमिक एस वेव्स जो हैं, जिसको सेकेंडरी वेव हमने पहले भी पढ़ा था। सिस्टमिक वेव्स कौन सी होती हैं? जो अर्थक्वेक टेक्टिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से जनरेट होती हैं। तो उसमें जो एस नेचर की होती हैं, दैट इज द ट्रांसवर्स इन नेचर। लॉन्गिट्यूडनल वेव में हमारे पास क्या होता है? वी हैव पैरेलल मोशन। लॉन्गिट्यूडनल वेव में सबसे पहले साउंड वेव आती है, इसमें पी वेव्स आएंगी हमारे पास, इसमें पी वेव्स आती हैं। वेव करेक्टरिस्टिक्स में वेव साइकिल आ जाता है हमारे पास। ये एन ओवर टी बेसिकली किसको इंडिकेट कर रहा है? कि इफ वी हैव मोर देन वन वेव्स ट्रैवलिंग इन 1 सेकेंड, तो उसके लिए हम यहाँ पे एन को इंडिकेट कर देते हैं। सो एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट टाइम, उसके लिए जो भी टाइम होता है। पहले हमने क्या फॉर्मूला किया था? प्रीवियसली वी डिड एफ इज इक्वल्स टू 1/2। This formula is used if we are focusing on one wave time period. What if there are more than one waves present? तो उसकी जगह पे हम लोग waves को काउंट करेंगे, और उसको ऊपर वैल्यूज उसकी पुट करेंगे, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे उसका। लेट्स से, अगर मैं आपको जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग
उसने कहा है इट टुक फ्रॉम पॉइंट P टू Q 5 सेकेंड, कैलकुलेट द टाइम पीरियड। अब वी नो के P टू Q एक वेव नहीं बल्कि कितने वेव्स बन रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो हम टाइम पीरियड कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 4। 5 किसको शो कर रहा है, टाइम को, और ये नंबर ऑफ वेव्स को शो कर रहा है। फ्रीक्वेंसी चूंकि इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये क्या बन जाएगा, 4/5। अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी कर लेते हो ना तो दोबारा आपको यहाँ पे एन पुट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपने कॉमन सेंस अप्लाई करनी है कि आप टाइम पीरियड पहले ही एक सिंगल वेव पे निकाल चुके हो। ओके, डू वी अंडरस्टैंड दिस पार्ट और शुड आई रिपीट इट? Repeat it. I'm going to follow the exact diagram. Let's say we have 5 wavefronts drawn like this. They said it took 5 seconds to travel from P to Q. Find out the time period. Now we see that in order to reach to P from P to Q, it's not only one wavefront, but there are other wavefronts as well. And time taken from one wavefront to another is considered as a time period. So we see that it's not only one wavefront, but we have multiple. So we have to make a count of it. Never count the bar, count always like this. 1, 2, 3, 4. So total number of wavefronts हमारे पास कितने आ रहे हैं, 4। और P to Q ट्रेवल कितने में लगा, 5 सेकेंड। तो हमने 5 डिवाइड बाय 4 कर दिया इन ऑर्डर टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ 1। जैसे वो हम लोगों ने मे बी प्रीवियस क्लास में नहीं पढ़ा था कि इफ वांट टू फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ वन शीट, हम 500 शीट्स की लेंथ मेजर कर लेंगे। लेट्स से वो 10 सेंटीमीटर आया तो मैं इसको डिवाइड बाय 500 कर दूंगा ताकि मेरे पास एक शीट की थिकनेस आ जाए। इसी तरीके से उसने हमें एक वेव का टाइम पीरियड नहीं दिया हुआ बल्कि उसने मल्टीपल वेव्स का टाइम पीरियड दिया हुआ, तो हम उन वेव्स को काउंट करेंगे कि कितनी वेव्स बन रही हैं और उसको उससे डिवाइड कर देंगे टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ वन वेव। Okay, I understand now. Yeah. सेम थिंग इज गोइंग टू गो फॉर द वेव्स एज वेल। ठीक है, वेव्स में भी कुछ चेंज नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी तरीके से ड्रॉ कर लेता हूँ, वो कहता है फ्रॉम P टू Q द डिस्टेंस कवर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड आउट द वेवलेंथ। अब मैं डिस्कस कर चुका हूं कि वन वेव फ्रंट टू नेक्स्ट वेव फ्रंट इज वन वेवलेंथ। होल्ड ऑन बच्चों। अच्छा, तो टाइम पीरियड को उसने रिपीट किया हुआ अगेन। स्पीड का फॉर्मूला हमने कल भी डिस्कस किया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है नॉर्मली। और अगर वेव्स में कहें तो डिस्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। टाइम को कैपिटल टी से डिनोट कर दिया, 1 ओवर टाइम पीरियड किसको शो करता है, फ्रीक्वेंसी को। तो v इज इक्वल टू एफ लेमडा, और वी कैन ऑल्सो यूज दैट c इज इक्वल टू एफ लेमडा। यहाँ पे हमने c इसलिए पुट किया क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करते हैं तो उनकी स्पीड फिक्स होती है विच इज 3 × 10⁻⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ओके, फिर आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। उसमें मैंने रिपल टैंक को डिस्कस कर लिया था। रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टडी द और एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स लाइक लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स। हमारे पास एक ग्लास स्लैब होता है, उसके टॉप पे वाटर होता है, ये एक वाइब्रेटर अटैच्ड होता है, एक लैंप होता है। अगर हम ऐसे प्लेन वाइब्रेटर जो है इसको अटैच करते हैं, हमारे पास इस तरह प्लेन वेव फ्रंट्स आते हैं। अगर मैं इस वाइब्रेटर के साथ एक पॉइंटर अटैच कर दूंगा तो मेरे पास स्फेरिकल वेव फ्रंट्स आएंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरह बिलो इमेज आता है। इस इमेज के थ्रू हम लोग वेवलेंथ, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसीज को जो है वो मेजर करते हैं। ओके, तो रिपल टैंक इज अ डिवाइस विच इज यूज। आपको रफ स्केच ऑफ रिपल टैंक बनाना आना चाहिए कि के अंदर कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं। एग्जामिनर नॉर्मली कुड आस्क अबाउट इट, तो वी शुड नो कि कैसे उसको हमने करना है। तो कल हमने कौन कौन से डिस्कस की थी, रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था। रिफ्लेक्शन हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शंस भी होती हैं और इरेगुलर भी होती हैं। रेगुलर रिफ्लेक्शंस हमारे पास तब होती हैं जब हमारे पास स्मूथ सरफेस होती है। इरेगुलर रिफ्लेक्शंस हमारे पास कब होती हैं, जब हमारे पास रफ सरफेस होती है। हम लोगों ने सिंपली, इन्होंने सिंपल एक डायग्राम डिस्कस की हुई है कि अगर एक वेव आ रहा है टुवर्ड्स अ मीडियम, वहां पे हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। इससे नोन एज इंसिडेंट एंगल, और ये it would reflect at exactly the same angle such that incident angle is equals to reflected angle only अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है।
अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन है तो इंसिडेंट एंगल इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। इस तरीके से वेव्स जो है हम लोगों ने उसमें शो करनी है हमारे पास। रिफ्लेक्शंस तब होती हैं जब हमारे पास एक हार्ड सरफेस होती है इन फ्रंट ऑफ इट। रिफ्लेक्शंस हमारे पास ये होती हैं कि हमें दो पॉइंट्स याद रखने हैं, शैलो टू डीप एंड डीप टू शैलो। जब आप शैलो टू डीप जाते हैं तो वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज करती है, ठीक है। और जब आप डीप टू शैलो जाते हैं तो वेवलेंथ क्या करती है, डिक्रीज। वेवलेंथ इंक्रीज एंड डिक्रीज करने का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि जब वो इंटर करेंगे तो ये डिस्टेंस बिटवीन द वेवफ्रंट्स हमने क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है, ठीक है। और अगर हमारे पास अदर वे अराउंड है, मैं यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, शैलो रीजन है, ये डीप रीजन है और अब वो शैलो में इंटर हो रहे हैं, तो हमने उनको वी विल ब्रिंग फर्दर क्लोज टू ईच अदर सच दैट कि यहाँ वेवलेंथ बिगर है, यहाँ पे वेवलेंथ क्या होगी, स्मॉल हो। ओके। इस सारे सिनेरियो में हमने ये रखना है कि वेवलेंथ और स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो अगर वेवलेंथ डिक्रीज करिए तो स्पीड भी डिक्रीज करेगी, अगर वेवलेंथ इंक्रीज करिए तो स्पीड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट। फॉर्मूला है ना, v इज इक्वल्स टू एफ लेमडा। एफ इज गोइंग टू कांस्टेंट रिमेन कांस्टेंट, तो v एंड एफ लेमडा आपस में क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर शेलो मीडियम में वेव्स जो हैं दे आर कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो उसकी स्पीड भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके। व्हेन वी गो इनटू अ डीपर रीजन तो हमारे पास स्पीड क्या होती है एंड वेवलेंथ दोनों क्या होंगे, इंक्रीज। इज दैट क्लियर? Yeah. और रिफ्लेक्शन होता क्यों है, ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ मीडियम। स्पीड में जो चेंज आता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मीडियम, मैंने कल भी डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर, वो हम लोगों ने सैंड और वाटर वेव्स के बारे में जो डिस्कस किया था, इट वाज दिस। ओके। डायफ्रेक्शन हमारे पास क्या होती है, डायफ्रेक्शन हमारे पास क्या होती है, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्स्टेकल। तो अगर वेवलेंथ और ये ओपनिंग इक्वल्स टू ईच अदर है तो हमारे पास सर्कुलर वेव फ्रंट्स आएंगे। अगर ओपनिंग इज बिगर तो ऑलमोस्ट स्ट्रेट आएंगे, सिर्फ उनके एजेस क्या रहेंगे, कर्व रहेंगे। तो डायफ्रेक्शन मैक्सिमम कब होती है, जब ओपनिंग यानी स्लिट जो है, ये ओपनिंग जो है इट्स इक्वल्स टू वेवलेंथ। इफ वेवलेंथ इज स्मॉलर देन द ओपनिंग दैट इज स्लिट, तो हमारे पास लेस सर्कुलर वेव फ्रंट्स बनेंगे। और डायफ्रेक्शन क्यों यूज होती है, डायफ्रेक्शन के थ्रू ये उसने आगे बताया भी हुआ है। शॉर्टर वेवलेंथ होगा तो डायफ्रेक्ट लेस होगा, लॉन्गर वेवलेंथ होगा तो हमारे पास ज्यादा आएगी। क्योंकि जो हमारे पास एवरीडे रूटीन में बैरियर्स होते हैं वो बहुत बड़े बड़े साइज के होते हैं, सो अगर हमें डायफ्रेक्शन को ऑब्जर्व करना है वी नीड टू हैव अ लॉन्गर वेवलेंथ। शॉर्टर वेवलेंथ इसलिए नहीं होती। इसकी एक एग्जांपल ऐसे है कि इफ यू आर स्टैंडिंग इन अ रूम ऑन वन साइड ऑफ द वॉल, you could hear the two persons talking but you cannot see them. Why is that? Because sound की wavelength जो है is bigger as compared to the wavelength of light. So sound deflect कर पाएगा, light deflect नहीं कर पाएगी due to its shorter wavelength. तो ये गैप साइजेस, नैरो गैप एंड वाइडर गैप्स, ये मैंने अभी अभी डिस्कस किए हैं, उन्हीं टर्म्स के ऊपर जो हैं वो सारी जो हैं एक्सप्लेनेशंस हुई हैं। So that is the end of chapter. Tsunami waves and generations and everything, seismic waves को मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस करवा चुका हूँ। यहाँ पे अगेन उन्होंने थ्योरी में वही पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि हाउ यूजिंग ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स या प्रॉपर्टीज ऑफ